Very good morning to all of you. Today I'm here to discuss on the topic method of preparation of Ayurvedic formulations. As you know, हमने traditional system of medicines में पढ़ा था. There are various types of formulations like arishtas, asafs, gutikas, telas, churnas. ठीक है, तो इन सबको हमने बनाना कैसे है? We will discuss in this lecture. Ayurvedic pharmaceutics को हम कैसे divide करते हैं? That is, it is also known as द्रव्य गुण. Okay, so हमारी जो सबसे पहली बुक थी that is Materia Medica, उसमें क्या होता था? Animal origin, प्लांट ओरिजिन एंड मेटल्स एंड मिनरल ओरिजिन, इनके बेसिस पे ड्रग्स को डिवाइड किया गया था. फूड, ड्रग एंड पॉइजन. इन आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या होता है? हर्बल ड्रग्स पढ़ते हैं हम, एचएम मेडिसिन, होलिस्टिक मेडिसिन इसको बोलते हैं. मॉडर्न मेडिसिन डिसीज मैनेजमेंट करता है. एंड द थेरेपी व्हिच स्पेसिफाइज डिसीजेस एंड गिव राइज टू अदर डिसीज इज नॉट ए प्योर थेरेपी. कि एक बीमारी आपकी ठीक हो रही है और दूसरी डिसीज हो रही है उसके साइड इफेक्ट से, दैट इज नॉट अ प्योर थेरेपी. वो प्रैक्टिस गलत है. द प्योर इज वन व्हिच स्पेसिफाइज विदाउट इरप्टिंग अदर प्रॉब्लम्स. मतलब अगर हम एक ठीक कर रहे हैं तो दूसरी को भी हमें ठीक करना है, ये नहीं कि दूसरी हो जाए उससे. सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस इन आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म. कैटेगरीज क्या है हमारी अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद बुक्स? डॉक्यूमेंट्स आप कह सकते हैं चरक संहिता, it contains 128 dosage forms. Then Sushruta Samhita, it contains 129 dosage forms. Ashtanga Hridaya, 90 dosage form. Chakradatta, 90 dosage form. Shrangandhara, Bhishajya, Ratnavali. So these are various types of documents in which they contains various type of formulations. Ayurvedic dosage form में अब क्या क्या आएगा? Basic and others like Swarsa, Kalika, Shrita, Hima, Fanta. Dosage forms में हमारी solid, सेमी सॉलिड, लिक्विड्स एंड फ्यूम्स. जैसे हम फार्मास्यूटिक्स में एलोपैथी में डिवाइड करते हैं सॉलिड, सेमी सॉलिड लाइक इमल्शंस, टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशंस, लिक्विड सिरप्स एंड फ्यूम्स, एरोसोल्स. सिमिलरली इन आयुर्वेदिक आल्सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डोसेज फॉर्म. लाइक सॉलिड इट कंटेन्स चूर्णा, गुटिका. ठीक है, इन सेमी सॉलिड में लेहा आएगा आपका, अवेला. लिक्विड्स में आसव, अरिष्टा, अर्क, then fumes, dhumrapana, dhupana. Major dosage forms are vati, it is also known as tablet, avela, medicated confection, asafs, fermented syrup, arishtas, also fermented syrup. Gutika is just like a tablet. Modak is as round tablet. Gritapaka, processed clarified butter. Talyapaka, oil processed with herbs. The churna is powder. Shirapaka is milk processed with herbs. Then guda, herbs mixed with jaggery. Paya is a drink made of rice and herbs. Then ghana sattva is a decoction of herbs evaporated to take tablets. What is new in this innovation Ayurveda? Always there is a continuous new evaluation of new ideas which aimed at better service, and sufficient evidence is available as per now. The basic principle of Ayurveda is same as devised by our acharyas. हमने basic principle में कुछ change नहीं किया है. Only क्या change किया? The way of presentation by using the modern technology. हम ensure किया है the quality must be original as possible. The faulty presentation of the original product in the name of modernization is very much responsible. So we must be very careful while introducing modern innovative techniques. अब innovative techniques जरूरी हैं? Definitely, it is required. Why? To prove the authenticity of our medicine scientifically. Traditional medicine system में तो लिखा हुआ है कि आपका following ये drug इसके लिए है, but how we can scientifically prove with the help of the modern technology for the large scale production, for the globalization. And in the process of evaluation, we have started making many new ways of presentation, such as different dosage form by using modern machineries, packaging, and preservations. Now, as the final product is genuine and effective, this always remain doubtful about the efficacy. So, how can you say this? By the quality control parameters and by following standardization. So now the concept of bhasma along with recent advance we are going to discuss. Herbs क्या होती हैं? These are the widely used for medicinal purposes
for the ancient past. Gradually minerals were also identified. धीरे धीरे क्या हुआ, minerals पे भी हम गए, and they are incorporated for the medicinal purposes, for making the fine powder, heating, quenching in various liquids, grinding and filtering through cloth were adapted. Later, along with these techniques, many other specialized process techniques आई हमारे पास, like शोधना, मारना. Shodhana is purification, Marana is incineration and calcination. Samaskara specialized process techniques, especially used for mercury, were also developed. And with the advancement of the processing techniques, Rasa Shastra used metals and minerals, which came frequent in the therapeutics. Now, what are the materials used for making bhasma? First, Rasa is Prada, that is known as mercury. Maharasa, Abraka, Makshika, Chalcopyrite, Upasna, Gandhaka, Geraka, then Shadhara Narasa, Dhatu, Ratna, and the marine products. Superiority of the mineral products, small dosage, tastelessness, कोई taste नहीं होता, quick absorption होता है उनका, effective होते हैं, long shelf life है, जल्दी से खराब नहीं होते हैं, wide range of therapeutic efficacy इनके पास, effective on dreadful chronic and incurable diseases, easy storage and easy transportation, and above such qualities of mineral preparation made them popular and superior over the herbal medicines. In general practice, simple diseases are treated with the herbs or herbals. Now the procedure for the mineral processing में क्या होगा, सबसे पहले आपको heating करनी है, heat करेंगे, then heating and quenching होगा, boil करेंगे बहुत सारे liquids के साथ, उसको बोलते हैं स्वेदना, then grinding is there, मरादना, roasting के बाद filtering, गलाना होता है उसको, distillation is known as patana, sublimation is urdhvapatana, wet trituration bhavana, and heating through put or copy paka system. Above all the important procedure applied during shodhana and marana. Products हमारे होते हैं शुद्ध द्रव्य, भस्म, सिंदूरा, पोटली, परपति, ध्रुति, द्रव्य, सत्वभसन, खरलिया, रसायन. अब ना इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होते हैं मेकिंग, पहले सबसे पहले हमें प्री ट्रीटमेंट करना होता है, जिसको हम शोधना भी बोलते हैं और प्योरिफिकेशन भी बोलते हैं. देन मेन या चीफ ट्रीटमेंट उसको बोल सकते हो, शोधना के बाद आता है मारना, जिसमें इंसिनरेशन, बर्निंग होती है और कैल्सिनेशन होता है. एट लास्ट वी विल गो टू पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, इट इज नोन एज लोहित करना, निवृत्त करना एंड अमृत करना. एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ भस्म, शोधन, प्योरिफिकेशन, pre-treatment, marana, that is incineration, calcination, these two fold procedure are the important steps. सबसे important क्या रहता है इसके अंदर, पहले दो स्टेप जो होते हैं शोधना और मारना के. नेक्स्ट इज effect of शोधना. शोधना में हम क्या करते हैं, एडिशन एंड सेपरेशन प्रोसेस होता है. ये मारना का प्री प्रोसेस है, मतलब मारना प्रोसेस पे जाने से, प्योरिफिकेशन करने से पहले हम शोधना करते हैं. फॉलोइंग इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग शोधना में क्या क्या आपको दिखता है, मटेरियल बिकम फ्री फ्रॉम विजिबल एंड इनविजिबल इंप्योरिटीज, शुद्ध हो जाता है, मतलब जितनी भी इंप्योरिटीज हैं वो दूर हो जाएंगी. अनडिजायरेबल, वॉलेटाइल एंड इन्फ्लेमेबल मटेरियल जो भी प्रेजेंट है वो एस्केप आउट हो जाएगा. masses of mineral converted into fine and brittle. Development of fineness and brittleness facilitates the Bhavna process. Then partial oxidation and reduction हो जाता है. Induction of organic therapeutic property in the organic material. These all are the effect of Shodhana. Bhavna and its effects में क्या आएगा, wet trituration process है. एडवांटेज क्या होता है इसका, वेट ट्राइचुरेशन में ना मटेरियल जो होता है मिक्स यूनिफॉर्मली हो जाता है, अच्छे से हो जाता है. एंड मटेरियल डिवाइडेड इनटू फाइन हो जाएगा. सरफेस एरिया ऑफ द मटेरियल एक्सपोज्ड एंड एक्सपेंडेड व्हिच फैसिलिटेट्स द रिएक्शन ड्यूरिंग फायरिंग एंड इट डेवलप्स सॉफ्टनेस, स्मूथनेस एंड स्टिकीनेस इन द मटेरियल, फैसिलिटेट्स बेटर बाइंडिंग हो सकती है. एनहांसमेंट हो जाती है थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स एंड मेटल्स. देन पैलेटाइजेशन में क्या रहता है, स्मॉल डिस्क
मटेरियल हम यूज करते हैं, डायमीटर उसका रहता है 3 सेंटीमीटर, थिकनेस 1/2 सेंटीमीटर। सन में या और इन ड्रायर में हम ड्राई करते हैं। बिफोर पुटिंग इनटू द सरवा, जो केस रोल्स होते हैं फॉर सीलिंग, इट शुड बी ड्राइड कंप्लीटली। ड्राई करने के बाद ही आप उनको केस रोल्स में डालेंगे। वेट पैलेट शुड नॉट बी अलाउड, बिकॉज वेट पैलेट होगा तो मॉइस्चर आ जाएगा और खराब हो जाएगी आपका। वेट पैलेट इफ सब्जेक्टेड फॉर फायरिंग और the desired color will not appear and a desired smoothness will not develop. Then there is various भस्म पोस्ट ऑपरेटिव स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में आएगा लोहिता करना, निरुता करना, अमृत करना। इन सब के पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर आर आल्सो फॉलोड टू अचीव सेफ, इफेक्टिव और डिजायर्ड। अगर भस्म चाहिए तो आपको पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर ही फॉलो करने होते हैं, जैसे कि निरुता करना, अमृत करना इसको बोलते हैं। इट रिमूव जितने भी ब्लेमिशेस रह जाएंगे लास्ट में वो सबको ट्रीट करेगा ये, और एनहांस करता है थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द भस्म। लोहित करना में क्या होता है, इट डेवलप्स डिजायर्ड रेड कलर इन केस ऑफ द लोहा एंड अम्र का भस्म। निरुत करना, इट रिड्यूस रिमेनिंग फ्री मेटल्स ऑफ द भस्म एंड इट कन्वर्ट्स द मेटल इनटू कंप्लीट भस्म। एंड देयर आर मेनी टेस्टिंग पैरामीटर्स होते हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग पैरामीटर्स में आएंगे भस्म परीक्षा जिसको बोलते हैं, लाइक फिजिकल, उसमें बोलते हैं हम रेखा पूर्णवता, इंडिकेटिव ऑफ फाइनेस, वरितकरवता लाइटनेस, निश्चंद्रवता फ्री फ्रॉम मेटेलिक लस्टर। देन केमिकल में आएगा आपका अपूर्ण भवता एंड निरुतवता, कंप्लीट कन्वर्जन इनटू द नॉन रिवर्सिबल कंपाउंड एंड एब्सेंस ऑफ फ्री मेटल इन द भस्म, टेस्टलेसनेस, दधी, अम्ला परीक्षा फॉर द तामरा। एंड कलर्स ऑफ वेरियस भस्म, आप कलर से कैसे कह सकते हैं, लाइक स्वर्ण का चमका वर्ण रेडिश येलो कलर होगा, रजत एंड ताम्रा कृष्ण ब्लैक कलर, गंगा इज व्हाइट, कमस्या इज धतुसर, नाग्या इज कपोट वर्ण। These testing parameters are essential followed for the determination of bhasma and use of now modern techniques and tools for testing में क्या आता है, these tests are time tested and perfect but these essentially based only on the naked eye observation पे depend करते हैं and experience। इनकी limited sensitivity होती है and can be applied only after long experience या practice किसी को है तो वो ही use कर सकते हैं। And with the advancement of modern science and technology, many other sophisticated and sensitive tests are being employed। भस्म को टेस्ट करने के लिए बहुत सारी सेंसिटिव टेस्ट भी आते हैं जिनके अंदर आता है मेटेलोग्राफिक स्टडी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से आप कर सकते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो सकती है, एक्सआरडी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लाइक यूवी है हम उसको यूज कर सकते हैं, पार्टिकल साइज एनालिसिस कर सकते हैं। एंड द एनालिटिकल स्टडी of the metallic bhasm reveals that physical and chemical changes take place after each and every process, चाहे आपने शोधना कर है चाहे आपने मारना कर है, पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स है। Hence chemical analysis on the level of ash content, acid soluble content, insoluble content, moisture content, specific gravity, loss on ignition, loss on drying etc. it should be determined। ये सब पैरामीटर्स होते हैं जो हमें सबको बताते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है कितना प्योर है। नेक्स्ट, यूज ऑफ मशीन्स एंड वेरियस हीटिंग डिवाइसेस फॉर द ग्राइंडिंग, पाउडरिंग या फिल्टरिंग करने के लिए, हीटिंग करने के लिए ड्राइंग वेरियस न्यूज मशीन्स आर प्रेजेंटली यूटिलाइज, जिसको हम बोलते हैं सच एज ग्राइंडर है, पैसल मोटर यूज करते हैं, एंड रनर, एज रनर, डिसइंटीग्रेटर पल्वराइजर है, सीव शेकर है, शिफ्टर है, ड्राइंग ओवन्स, इलेक्ट्रिकली पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस हीटेड फर्नेसेस। हमें मैनुअल लेबर सेव करने के लिए क्या है इसके अंदर हम यूज करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, बल्क प्रोडक्शन हो जाए, जिससे क्या होता है अल्टीमेटली बेटर रिजल्ट्स आते हैं। दीज डिवाइसेस आर नीड ऑफ द टाइम। प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव एंड प्रोडक्ट कैसे हम कर सकते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट एन ऑथेंटिफिकेशन, आपको करवाना है अपने रॉ मटेरियल का. देन एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर मेथड्स, यूज ऑफ असेंशियल इक्विपमेंट्स एंड यूटेंसिल्स, जितने भी आपको यूज करने इक्विपमेंट्स एंड यूटेंसिल, use of various fitting devices or systems are applicable for the particular material, intensity of the temperature required to be applied, application of testing parameters to achieve desired characteristics in the bhasma, then application of the post-operative sanskars to the bhasma wherever needed. Past scenario क्या था? Earlier medicines were prepared by the physician themselves for the patient. Physician खुद ही बनाता था, and physicians were well qualified to identify the material. They were trained in various processes. वो trained रहते थे. They were following guidelines of Shastra, and experienced teachers के जो भी experience होते थे, उनकी guidelines को वो follow करते थे. And according to the immediate need of the patient, वो modify कर लेते थे formulation को. और present scenario क्या है? Physicians today are more involved with the diagnosis and treatment. जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है वो चला गया बिजनेसमैन के हैंड्स में, एंड द क्रू ड्रग्स आर मोस्टली इन द हैंड्स ऑफ शॉपकीपर्स के पास बस क्या रह गया? क्रू ड्रग्स, हु सप्लाई देम टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो जाता है. दे आर यूजिंग देयर ओन मेथड्स. लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए वो क्या लोग करते हैं? कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी के लिए से, एंड कॉम्प्रोमाइज विद अ लॉन्गर एंड लेंथी प्रोसीजर, वो जल्दी जल्दी से बना देते हैं. ड्रग्स एडेड ड्यूरिंग प्रोसीजर आर नॉट मेंशन्ड ऑन द लेबल. इवन सारी जो ड्रग्स होती हैं वो मेंशन भी नहीं की जाती है लेबल्स पर. एंड दे कॉम्प्रोमाइज इक्विवेलेंट जो सब्स्टिट्यूट्स हैं ऐड कर देते हैं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. एंड द एग्जैक्ट प्रोसीजर आइदर ऑल्टर कर देते हैं एग्जैक्ट प्रोसीजर को, या फिर शॉर्टकट बना देते हैं. सो दिस लेड टू द डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स, एंड द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग इज दस फेल्ट नेसेसरी. इसलिए क्या हुआ, जितने भी आयुर्वेदिक ड्रग्स थी, फॉर्मुलेशंस थी, वो कुछ लोग बोलते हैं इतनी इफेक्टिव नहीं होती. इसलिए नहीं होती है बिकॉज उनका प्रॉपर मेथड फॉलो नहीं किया जाता है. सो इसलिए अब क्या हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ही जरूरी हो गया है, हर ड्रग का हमें करना चाहिए. लाइक वंगा इज टिन, दिस इज द द्रवित वंगा, वंगा शोधना, हाई टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं इसमें. शुद्ध वंगा, वंगा भस्म. सो दिस इज अबाउट द भस्म. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अरिष्टास कैसे बनाते हैं हम, ठीक है, अवेलास कैसे बनते हैं. सो डिस्कवरिंग न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या कहता है हमारा, न्यू नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड सर्विसेज, देन अप्लाइंग दैट नॉलेज टू क्रिएट न्यू एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे, प्रोसेसेस एंड सर्विसेज दैट फिल द मार्केट नीड. बिकॉज एट प्रेजेंट herbal drugs are again in the market, and 80% of the world population are now switching to the herbal drugs. तो उसके लिए आयुर्वेदिक पोस्ट रिसर्च ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स भी बनाए गए हैं. सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च है CSIR in Ayurveda and Sinana, and Siddha modern research institutes हैं like CSIR, ICMR, university faculties, Department of Botany, Biology, Pharmacology, Medicinal Chemistry, pharmaceutical companies also are there. So this is